ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਕਸ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਸ ਲਾਅ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੁਕਸ ਲਾਅ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਨ ਦ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਮੀਨਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਦਿਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਜਦ ਮੈਂ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹਟਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਾਲਡ ਹੁਕਸ law, means stress is directly proportional to strain। और लिमिट की हैगी है means within the elastic limit, जब तक तुसी elastic limit दे अंदर रहोगे। और रेशो स्ट्रेस इज कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तुसी हटाओगे तो तुहाडे कोल एक कॉन्सटेंट आएगा और वो कॉन्सटेंट जिहड़ा हैगा दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। और इस कॉन्सटेंट नूं आपां कहंदे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कॉन्सटेंट है जो सानू रिलेशन दसदा हैगा वट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्ट्रैस एंड स्ट्रेन। जे आप ग्राफ लीए जिहड़ा ग्राफ हैगा तुहाडा स्ट्रैस और स्ट्रेन दा इधरली साइड स्ट्रैस है और इधरली साइड तुहाडे कोल स्ट्रेन। स्ट्रेन मीनस किन्नी उहदे विच चेंज आ रही है। तो जिहड़ी विदिन द इलास्टिक लिमिट जिहड़ी है स्ट्रैस वर्सिस स्ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। मीनस अगर लेंथ तुहाडी 2 सेंटी अगर तुसी फोर्स 2 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैगे हो तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 4 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਨਿਊਟਨ ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिहड़ा कॉन्सटेंट हैगा वो किस चीज़ से डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉडी। जिस मटीरियल की बॉडी बनी हुई है उस चीज़ के उत्ते मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तुहाडा डिपेंड करता है। एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की जिहड़ी मर्जी शेप हो उस चीज़ के उत्ते डिपेंड नहीं करता हैगा, सिर्फ बॉडी के नेचर किस चीज़ का वो बॉडी बनी हुई है मटीरियल की उस चीज़ के उत्ते वो डिपेंड करता हैगा। तो यूनिट की होया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों। सो मैथमेटिकली अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करा, मान लो दिस इज़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जब बॉडी दे स्प्रिंग दे नाल कोई भी लोड अटैच्ड नहीं सीगा। ठीक है, जब मैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ mg वेट अटैच किया ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। दिस इज़ डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मीनस mg वेट दे नाल वो नीचे की तरफ कितना खिसक गया, डेल्टा एल। सो एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई है स्प्रिंग दे विच, डेल्टा एल नूं मैं एक्स भी लिख सकती हाँ भी एक्स डिस्टेंस वो नीचे की तरफ आ गया। तो किहड़ी फोर्स दे नाल वो नीचे की तरफ आया हैगा, वेट दे नाल। और वेट जब तुसी हटाओगे तो बॉडी अपनी वापस पोजीशन ते जाऊगी तो ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ी रिस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी नूं ओरिजिनल पोजीशन ते लेके जाएगी दैट इज़ एफ आर। तो जिहड़ी एफ फोर्स लग रही है
दैट इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। के एक कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिन्होंने ਆਪਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਐਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ weight mg ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟਡ ਹੈ। ਕੇ ਇਜ਼ ਦ ਸਪਰਿੰਗ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਫੋਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਪੋजिट ਹੋਏਗੀ। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 कैटेगरी ਚ डिवाइड ਕੀਤਾ ਹੈ। फर्स्ट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कहता हैगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रैस टू द लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन। ये आप पिछले लैक्चर च पढ़िया है कि लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रैस की होंगी है। लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रैस मीनस जब तुसी फोर्स किसी बॉडी दे अलॉन्ग द लेंथ अप्लाई करते हैगे हो तो उहदे नाल की होंदी है, उहदी लेंथ इनक्रीज। मान लो ये तुहाडी ओरिजिनल लेंथ है, जब तुसी फोर्स एफ अप्लाई की बॉडी की लेंथ आ नवी इत्थे तक बन गई, दैट इज़ कॉल्ड एल डैश। ठीक है, तो हुण किन्नी इनक्रीज की बॉडी की लेंथ इत्थों लेके ਇੱਥੇ ਤੱਕ, दैट इज़ रिप्रजेंटेड बाई डेल्टा एल। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है बच्चों, सो दिस एल इज़ द ओरिजिनल लेंथ ए एंड ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। तो फोर्स जी हैगी नॉर्मल टू द सरफेस लग रही है जिहदे नाल लेंथ जी हैगी है उहदी डेल्टा एल दे नाल इनक्रीज कर गई है। तो नॉर्मल स्ट्रैस विल बी योर फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, जेड़े एरिया दे उत्ते तुहाडी आ जिहड़ी फोर्स लग रही है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रैस। ठीक है, हुण इस फोर्स लगन नाल स्ट्रैस लगन नाल उहदी लेंथ कितनी चेंज हुई है, डेल्टा एल। और उहदी ओरिजिनल लेंथ पहला कितनी लेंथ सीगी, एल। पहला लेंथ उहदी एल सीगी, चेंज कितनी हुई है, डेल्टा एल। सो डेल्टा एल बाई एल गिव यू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो यंग्स मॉडुलस विल बी नॉर्मल स्ट्रैस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब तुसीं इहनूं पुट कर दो तुहाडे कोल आ जांदा y इज़ इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ द रॉड। एरिया ऑफ द सर्कुलर एरिया हैगा तो इनू आपां अगर ये तुहाडा रेडियस हैगा तो आपां इनू लिख सकते हैगे आ ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड वैल्यू देखनी है यंग्स मॉडुलस की, अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है मीनस जिहदे विच बॉडी दे विच कोई चेंज नहीं हो सकता, मीनस डेल्टा एल विल बी जीरो। डेल्टा एल मीनस इनक्रीज इन लेंथ। अगर बॉडी रिजिड है तो उहदे विच तो चेंज होनी ही नहीं है। अगर डेल्टा एल जीरो है तो डेल्टा एल तुहाडा डिनोमीनेटर दे विच जीरो आ रहा है। एनीथिंग divided by 0 is infinite. So for the perfectly rigid body यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होएगी, इन्फिनिटी। और फॉर एयर y यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 0। एयर दे विच इलोंगेशन मीनस अगर मॉलिक्यूल्स अगे ही बहुत ज़्यादा पार्ट डिस्टेंस के उत्ते हैगे हैं तो फोर्स लगन ते ओदी उन्हां दा डिस्टेंस इनक्रीज नहीं करेगा बिकॉज एयर हैज़ नो शेप। सो यंग्स मॉडुलस इज़ 0 फॉर द एयर। ये थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप च क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परफेक्टली रिजिड बॉडी वास्ते यंग्स मॉडुलस की की वैल्यू है या एयर वास्ते यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हैगी है। फिर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ वाई मीनस यंग्स मॉडुलस की होंदा है डिक्रीज करता है। मीनस जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जी स्ट्रेन है चेंज जी हैगी वो साडी ज़्यादा होंदी है एट हायर टेम्परेचर। जिन्नी स्ट्रेन ज़्यादा होएगी क्योंकि यंग्स मॉडुलस की हैगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। जिन्नी स्ट्रेन ज़्यादा होएगी यंग्स मॉडुलस उन्ना घट होएगा, जिन्ना स्ट्रेन घट होएगी यंग्स मॉडुलस उन्ना ज़्यादा होएगा। सो हायर टेम्परेचर के उत्ते यंग्स मॉडुलस की वैल्यू की होंदी हैगी है, घट होंदी है, डिक्रीज होंदी है। यंग्स मॉडुलस किसदे उत्ते डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द रॉड। जिस रॉड जिस मटीरियल की बनी होंदी है उस दे नेचर के उत्ते जिहड़ा हैगा यंग्स मॉडुलस डिपेंड करता हैगा।
दूजा साडा मॉडुलस हैगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय कैपिटल के। और एक की डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द बल्क स्ट्रैस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप पढ़ चुके हैं बल्क स्ट्रैस की होंदा मीनस जब भी किसी आप बॉडी नू लिक्विड के अंदर रखते हैगे हैं तो वो लिक्विड जिहड़ी हैगी है बॉडी के उत्ते फोर्स लगांदा हैगा अंदर की तरफ उन्होंने कंप्रैस करता है। कंप्रैस करन नाल की होंदा हैगा उहदी वॉल्यूम जिहड़ी हैगी है वो डिक्रीज कर जाती है। पहला जिहड़ी उहदी वॉल्यूम सीगी वी, नवी वॉल्यूम कितनी होगी वी डैश। तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी v डैश माइनस v विच इज़ इक्वल टू डेल्टा v। और नैगेटिव आएगा बिकॉज जब आप किसी बॉडी के उत्ते प्रैशर अप्लाई करते हैं तो कंप्रैस हो जाता है, उसकी वॉल्यूम जी हैगी है डिक्रीज कर जाती हैगी है। सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू बल्क स्ट्रैस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क स्ट्रैस इज योर एफ अपॉन ए and volumetric strain is your delta v by v। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ वॉल्यूम हैगी है वो डिक्रीज कर रही है। और फोर्स अपॉन एरिया ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ भी कहते हैं, मीनस ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ लिक्विड बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ लगा रहा है दैट इज़ योर बल्क प्रैशर। और सो साडे कोल फार्मूला बन जाता है बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू माइनस पी वी बाई डेल्टा वी, वेयर इज पी इज द प्रैशर अप्लाइड ऑन द बॉडी। नेगेटिव साइन मैं तो दस चुकी हैं, इट रिप्रजेंट्स द डिक्रीज इन वॉल्यूम। सो ऐसा ही यूनिट विल बी सेम, that is Newton per meter square, and for a perfectly rigid body the value of K will be infinite because there will be no change in volume for a rigid body. And reciprocal of bulk modulus is known as compressibility, and compressibility is 1 by K. And then is your third type of modulus of elasticity, that is called modulus of rigidity or shear modulus। modulus of rigid means body कितनी ज़्यादा rigid हैगी है, ये चीज़ सानू ये दसेगी। and it is represented by this symbol eta। it is defined as tangential यानी कि shear stress to the shear strain। मीनस जब तुहाडी फोर्स किसी सरफेस दे टेंजेंट लगदी हैगी है तो उहदे नाल उस बॉडी दे विच किन्नी शेप दे विच किन्नी उहदी बॉडी दी शेप चेंज होंदी हैगी है, दैट इज़ द shear strain। तो ये तुहाडा सिलेंडर हैगा है, जब तुसी टेंजेंशियल फोर्स एफ उहदे टॉप मोस्ट फेस दे उत्ते लगांदे हो उहदा फेस जिहड़ा हैगा अगे दी तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, बॉटम जिहड़ा तुहाडा फिक्स है वो उत्थे ही पिया हैगा, ठीक है। तो जिन्ना एंगल के नाल ये तुहाडी जिहड़ी ओहदी लेंथ है वो डिस्प्लेस हो रही है अगे नूं, फेस जिहड़ा डिस्प्लेस हो रहा अगे नूं, दैट इज़ कॉल्ड द shear strain। अगर आप ब्लॉक ले लिए तो ये ब्लॉक का जिहड़ा ए डैश बी डैश सी डैश डी ये जिहड़ा सरफेस है तुहाडा ए वाला ये कितना अगे नूं चला गया हैगा, पहला ब्लैक दे नाल डिनोटेड है वो कितना अगे नूं चला गया हैगा, दैट इज़ योर shear strain। और ये जिहड़ा डिस्प्लेस डेल्टा एक्स जिहड़ा रिप्रजेंट कर रहा कि ये जिहड़ा फेस है तुहाडा कितना अगे नूं खिसकिया हैगा, दैट इज़ योर change in or displaced length of the face। so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी फोर्स अपॉन एरिया। और shear strain will be delta x by L which is represented by theta। so modulus of rigidity is tangential stress over shear strain। और टेंजेंशियल स्ट्रेस ਤੁਹਾਡੀ फोर्स अपॉन एरिया है, shear strain ਤੁਹਾਡਾ थीटा हैगा। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द your modulus of rigidity, eta is equal to f upon a theta। देखो थीटा डिनोमीनेटर च आ रहा है तो जिन्ना जिहड़ा थीटा घट होएगा, जिन्ना थीटा घट होएगा उन्ना बॉडी की होएगी ज़्यादा रिजिड होएगी, जिन्ना थीटा ज़्यादा होएगा उन्नी बॉडी रिजिड घट होएगी। सो एंगल ऑफ shear is the angle in radians through which each line originally perpendicular to the fixed face is turned when cube is sheared। जब क्यूब का उपरला फेस जड़ा अगे की तरफ नूं धक्या गया तो जो लाइन ये परपेंडिकुलर सीगी हुण किसी एंगल थीटा दे उत्ते आ जाएगी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द shear stress।
So shear stress for the ideal liquid is 0 and SI unit of shear stress modulus of shear or modulus of rigidity is 0 and SI unit is Newton per meter square। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ a force is required to stretch a copper wire 1 centimeter square in cross section, ठीक है, to double its length। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਏ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋ ਜਾਏ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ठीक है। सो लेट अस टेक द ओरिजिनल लेंथ भी L और जब आप ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगाने ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਊ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2L ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2L ਮਾਈਨਸ L ਦੈਟ ਇਜ਼ L ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ। ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F ਅਪੋਨ A ਡੈਲਟਾ L ਅਪੋਨ L। तो दिस बिकम्स योर फार्मूला। तो सानू फोर्स कढ़नी है तो इतों फोर्स आप कढ़ लाँगे YA डेल्टा L बाई L। यंग्स मॉडुलस तुहानू दिता होया, एरिया तुहानू गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, L तुहानू चेंज इन लेंथ कितनी हैगी है L, ओरिजिनल लेंथ कितनी हैगी है L। तो सबसटीट्यूट कर दिओ तो F की वैल्यू तुहानू डाइंस दे विच आ जांदी हैगी है 1.26 इंटू 10⁻12 डाइंस। दूजा एग्जाम्पल लेंदे हैगे कि आपां किसी सफेयर नूं जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिहड़ा सफेयर हैगा वो कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम जिहड़ी वॉल्यूम ओहदी कॉन्ट्रैक्ट करदी है किन्ने परसेंट 0.01% when taken to the bottom of the sea। और किन्ने किलोमीटर डीप लेके गए हैं आप 1 किलोमीटर डीप। यू हैव टू फाइंड आउट द बल्क मॉडुलस ऑफ द सफेयर। डेंसिटी ऑफ सी वाटर तुहानू दी गई हैगी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। सानू डेंसिटी गिवन हैगी है, चेंज इन वॉल्यूम कितनी हैगी है डेल्टा V बाई V इज दिस मच परसेंटेज। तो साडे कोल डेल्टा V बाई V नॉर्मल ले आवांगे तो 0.01 इंटू 100 और सानू फार्मूला पता है अगर साडे कोल 1 किलोमीटर आपां डीप जाते हैं यानी कि 1000 मीटर के उत्ते तो प्रैशर कड्ढण वास्ते सानू आ फार्मूला यूज़ करना पएगा H रो G। H इज़ योर हाइट, रो इज़ द डेंसिटी एंड G इज़ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। आप नैक्सट लैक्चर च पढ़ांगे भी प्रैशर किवें फाइंड आउट करना है। तुसीं ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। 1000 हाइट गए आपां, रो डेंसिटी दी हुई है 1000, G की वैल्यू 9.8 वैल्यू सबसटीट्यूट करके असीं पहला प्रैशर कड्डांगे। प्रैशर करन तो बाद सानू बल्क मॉडुलस पता हैगा K इज़ इक्वल टू प्रैशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम। तो यू विल गेट 9.8 प्रैशर वैल्यू सबसटीट्यूट कर दी, चेंज इन वॉल्यूम कितनी है 0.1 अपॉन 100। तो सबसटीट्यूट कर दिओ तो बल्क मॉडुलस की तुहाडे कोल वैल्यू आ जाती हैगी। थर्ड एग्जाम्पल हैगा साडा कि लेंथ ऑफ द वायर इनक्रीजेज बाई 8 मिलीमीटर। जे कोई लेंथ दी वायर दी लेंथ 8 मिलीमीटर इनक्रीज़ करती है जब तुसी 3 kg वेट उन्होंने उहदे उत्ते हंग करते हैं उहदे उत्ते लटकाते हैगे हो। इफ ऑल द कंडीशंस आर सेम वट विल बी द इनक्रीज इन इट्स लेंथ वैन डायमीटर इज डबल। वो कहता बाकी कंडीशन जब सेम रही और जब तुसी डायमीटर नू डबल कर देंदे हो रॉड दे तो दसो कितनी लेंथ उहदी इनक्रीज करेगी। तो सानू पता है यंग्स मॉडुलस का फार्मूला Y इज इक्वल टू F अपॉन A L अपॉन डेल्टा L। हुण कितनी लेंथ इनक्रीज करेगी दैट डेल्टा L इज इक्वल टू Y L अपॉन A इंटू Y। और A की चीज़ हैगा एरिया, सानू उन्हें डायमीटर यूज़ किया तो एरिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर आप लिखांगे तो A की जगह 4 दी जगह पाई डी स्क्वेयर बाई 4 सबसटीट्यूट करोगे तो तुहाडे कोल फार्मूला बन जाएगा। ये देखो डेल्टा L तो D स्क्वेयर इनवर्सली प्रपोर्शनल हैगा, ठीक है। यानी कि अगर तुसी डायमीटर नू डबल करते हो तो चेंज इन लेंथ विल बी 1/4 टाइम्स
ओरिजिनल लेंथ साढ़े कोल कितनी दिती हुई हैगी है 8 मिलीमीटर। हुण 8 मिलीमीटर जब साढ़े कोल लेंथ हैगी है तो नवी लेंथ कितनी बनूगी जब आप डायमीटर उहदा चेंज करांगे, इट विल बी 1/4। 1/4 मीनस 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 2 मिलीमीटर। यानी कि जिहड़ी उहदी लेंथ होगी है कितनी इनक्रीज़ करेगी, 2 मिलीमीटर लेंथ इनक्रीज़ करेगी अगर तुसी उहदा डायामीटर डबल कर दोगे। इस तरह बच्चों ये तुहाडे कोल न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं टू कैलकुलेट द यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और shear मॉडुलस, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।